हेलो। हेलो। हाँ गोरख सर। यस। सर मेरे को एक डाउट था। जैसे अभी हम ये कर रहे हैं, तो इसमें क्या पावर बीआई और टैबल्यू सीखना जरूरी है? It is not important actually. अच्छा, But इट इज नॉट। may I know your name? माय नेम इज गौरव। Gaurav. Oh, it's या a गौरव सर। user. It is showing user na. ओके ओके, आई विल चेंज दैट। Uh, so it is not important, but the thing is Power BI somewhat like reporting kind of tool where the analysis is done like so. And there was one like requirement from like requirement in the sense one student he asked if we can cover some like one or two sessions for that. So ओके maybe we फाइन। will do it in the EDA section. Yeah. लाइक इन 2018 आई वाज डूइंग लाइक टैबल्यू, आई वाज यूजिंग द Ah, टैबल्यू। या yeah, इन but it is out. 2018। Yeah, now reporting. So for reporting, we have lots of things. Even like with our exploited data analysis, we can do it. यस We can सर। build dashboard using these methods. लाइक So, I'm like टैबल्यू बेसिकली इट्स यूज्ड फॉर showing the information like user generated, I think so. hmm, 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 hmm. Like Yeah, we need to query on the tableau, no? correct, correct. Yeah. Yes. So actually, that is like in our machine learning AI. So it is not covered in the sense in our syllabus. Uh, it is not there actually. The Okay, Tableau okay. and Power BI. But just in case, like because of some, we can say one of the student he mentioned, okay, if we can cover. So, but Tableau, no, he asked about Power BI actually. Anyways, we will see in EDA if we have like extra time, then we can cover it. Yeah. Just a small introduction to it and just hands on. Yeah. All right. So we will wait for 1 more minute because let others join. It's already 8:01, like 8 past 1. Okay, guys. So, with the previous session, if anyone has any concern or doubt, you can just discuss. And then, if no, then we will continue with our regular uh, the topics which we have covered and the topics which we are going to look into last time. So yeah, we will start and let me recap what we learned in the last session. So these are the major of central tendency, mean, median, mode we have seen, and we have done some manual calculations how we calculate it. Then standard deviation and variance we have seen. Range, yeah, so we will let's have a small discussion on this part, range. Then skewness and kurtosis and outliers. So skewness, I think, yeah, we were discussing about skewness. So there are three types in the three types when we say three. So one is normal distribution. So yeah, there are two important types of this skewness. Either it is right skewed or it is a left skewed. Okay, so this is one thing and this is one thing, and third one is normal distribution, so we can say balanced data. But when we say skewness, to observe the skewness in our data, so these are the two types of skewness. Kurtosis, we will discuss it shortly on this kurtosis. And outliers, we will understand what are the outliers, what outliers are in a data, and how outliers plays an important. स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट वही है ना? Uh, yes, yes. Last time we have seen na standard deviation sigma, यस यस. sigma of square root of variance. Yes. So okay, let's continue then. But I remember, okay, when we discuss on this skewness one more time with examples, I will ask because I remember लास्ट सेशन में मैंने पूछा था कि कोई एग्जांपल अगर देगा तो अच्छी बात है। अगर आपको टाइम मिला होगा एक्सप्लोर करने को, इसका कोई किसी ने एग्जांपल देखा होगा तो यू कैन आप बता सकते हो, अदरवाइज वी विल डिस्कस ऑन। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस रेंज। तो रेंज इज वेरी इजी वाला पार्ट गाइस। सो लाइक इफ अगर किसी ने रेंज के बारे में कुछ पढ़ा होगा या कोई अंदाजा लगा सकता है कि रेंज क्या हो सकता है, फील फ्री टू आंसर इट, अदरवाइज वी आर लाइक डिस्कसिंग अबाउट इट। रेंज क्या हो सकता है गाइस? व्हाट इज द रेंज? वो रेंज क्या हो सकता है डेटा में? सो दिस ऑल थिंग्स वी आर डिस्कसिंग, दीज आर अबाउट डेटा। मतलब ये सब जो भी चीजें हम कर रहे हैं ना,
दिस इज ऑल अराउंड द डेटा। डेटा एंड एज वी डिस्कस कि डेटा हमारा कोर कंसेप्ट, कोर पॉइंट डेटा है। डेटा है तभी जाके एमएल है, डेटा है तभी जाके एआई है। ठीक है, तो डेटा वॉट एवर वी आर, दिस की कंसेप्ट वी आर डिस्कसिंग एक्सप्लोरिंग, दिस की कंसेप्ट आर ऑल अराउंड डेटा। ठीक है, तो रेंज के बारे में इफ एनीवन नोज, रेंज क्या होता है, अगर पता है तो आप प्लीज टेल मी। ऑल राइट। Range between it is between two numbers, no? Yes, 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 correct. So, which are those two numbers? You are right, but which are those two numbers, like in our data, or Well, let's say in this case, in this distribution case? तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यू, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं इस केस में पूछूंगा रेंज, तो रेंज कैसे कैलकुलेट होगी अपनी? ठीक है, दिस इज नथिंग बट, या आप ये डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज बोल सकते हो, बट इन जनरल ना, क्योंकि या वी हैव सीन मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, और रेंज एक चीज है जो हमने लास्ट सेशन में नहीं देखा था। तो इसमें वही गाइस, क्या होता है रेंज, मतलब एज अ नॉर्मल, एक नॉर्मल स्टेज पे हम डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। डेटा तो बहुत बड़ा है और आगे हम बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं डेटा को। लेकिन लास्ट सेशन में हमने एक छोटा सा डेटा देखा था, उसमें हमने नंबर्स लिए थे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिए, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ना, 2, 5, इस टाइप के हमने एग्जाम्पल लेके डेटा का हमने मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ईच एंड एवरीथिंग भी कैलकुलेटेड। सिर्फ रेंज बाकी था, तो रेंज भी देख लेते और आगे बढ़ते। आ, यहाँ पे एक, उसके बाद 7, अगर ऐसा डेटा है। हाँ, और वाई एम सेइंग न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्मेट में ही, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो भी कुछ आने वाला है, एवरीथिंग विल बी इन इन दिस न्यूमेरिकल फॉर्मेट ओनली। वो टेक्स्ट डेटा रहते हैं, उसको बाद में हम कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद वीडियो ऑडियो जो भी रहेगा उसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज मशीन नोज इट बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 7, 9, ठीक है, 9 एंड अगर मैं लिखता हूँ चलो 12, तो कोई बता सकता है शॉर्ट में इसका रेंज क्या हो सकता है? रेंज, यस गाइस, व्हाट कुड बी द रेंज? 2 to 12, 2 से लेके 12 तक 12 तक की का। रेंज। ओके, एक्चुअली इन आवर केस हम रेंज ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वी सॉर्ट, हम इसको सॉर्ट करते हैं। तो अगर सॉर्ट करेंगे तो लोएस्ट पॉइंट ये आएगा एक, और हाईएस्ट पॉइंट जो भी सॉर्टिंग होगा उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट इन द सेंस लार्ज नंबर, तो ये 12। तो रेंज कैलकुलेट होगी हमारी 12 माइनस जो स्मॉल नंबर है, उस इससे ये डिफरेंस आएगा, और जो जो भी डिफरेंस रहेगा इट विल बी आवर रेंज। ठीक है, तो 12 - 1 तो 11, इस केस में, इस डेटा के केस में रेंज रहेगी 11। सो इन रेंज के लिए क्या करते करते हम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, दैट विल बी आवर रेंज। बिकॉज 2 अगर कंसिडर करेंगे, 2 to 12, तो 1 छूट जाएगा। तो इसलिए वी स्टार्ट फ्रॉम लोवेस्ट एंड वी रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट, एंड वॉट एवर द दिस दिस इज नथिंग बट द रेंज जो भी रहेगी, मतलब मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। ठीक है गाइस, तो रेंज हमने देख लिया। अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ इज आउटलायर्स, बट बिफोर दैट स्क्यूनेस का जो एग्जांपल, उसको थोड़ा, जो भी हमने लास्ट टाइम पे देखा था उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, बोथ मतलब दोनों के एग्जांपल देख के। ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस, क्लियर, ठीक है, एंड लेट मी मूव टू द, हम अपने वाले इस पे आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये स्क्यूनेस का, तो स्क्यूनेस के एग्जांपल में मैंने राइट और लेफ्ट कुछ तो पूछा था, चलो दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। अगर कुछ डाउट होगा और कुछ पूछना होगा तो आप फिर से उसमें कुछ उसमें लेके आते आ सकते हैं। हाँ, ठीक है। सो दिस इज राइट स्क्यू। तो एग्जांपल के तौर पे शायद इसी को पूछा था मैंने आपको। ठीक है, तो अगर किसी को पता है एग्जांपल कोई दे सकता है इसके बारे में, जस्ट इन केस अगर पता होगा, या आप कुछ कोशिश करोगे देने का। तो ये हम एकदम बेसिक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं एक्चुअली, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड इन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिस हैपेंस, ऐसे होता है कि भाई अगर इम्बैलेंस डेटा है तो ऐसे स्क्यूड डेटा मिलता है हमको। तो फिर ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाद में तो उसको बहुत सारा एक्सप्लोर करना है हमको, डेटा को हम ईडीए वगैरह उसमें करेंगे, उसके बाद प्लॉटिंग, ग्राफ, वो सब, बट डेटा को अंडरस्टैंड करना भी इंपॉर्टेंट है। तो स्क्यूड में इस पे कोई एग्जांपल अगर दे पाएगा तो ठीक है, नहीं तो चलो, ऐसा कंसिडर करो कि ये है आपके पास एक, ठीक है, एक सेकेंड ना गाइस, यहाँ पे मतलब ये जो चीज है, तो यहाँ पे ऐसा समझो कि मैंने कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ पॉपुलेशन, हाँ, पॉपुलेशन एंड देन डेंसिटी, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जस्ट लेट मी इरेज, इरेज होता है क्या? हाँ ठीक है। ओके, थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग पे ना, 1 सेकेंड ना। तो मैं यहाँ से ऐसे निकलता हूँ, स्क्यूनेस दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे स्क्यूनेस भी है, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, ठीक है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई मीन, मोड और मीडियन अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो ऐसे सेंटर में तो नहीं आएगा मीन, बिकॉज इस साइड में तो डेटा है अपना, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं नंबर। ये जो एक्स वाई एक्सिस रहेगी अपनी, ये रहेगा नंबर ऑफ पीपल बोल सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, या काउंट बोल सकते हैं, टोटल काउंट ऑफ दिस पर्सन्स। हाँ, तो नंबर ऑफ पीपल और काउंट, टोटल टोटल बोलते या काउंट बोलते, काउंट। तो काउंट कैसे रहेगा? यहाँ से जीरो से शुरू होगा, जीरो, फिर लेट से 100 या 1000 के रेंज में जाते हैं, 1000, फिर उसके बाद, ठीक है, इस रेंज में। तो ये सब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चलो ऐसा है, 100 के है, ठीक है, ऐसा एक काउंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, इसको हम कंसिडर करेंगे कि भाई ये है टोटल वेल्थ। वेल्थ बोलेंगे, वेल्थ, वेल्थ मतलब सब उसकी प्रॉपर्टी। हाँ, ऐसे बोलते हैं वेल्थ, वेल्थ ऑफ ऑफ पर्सन पीपल। हाँ, मतलब टोटल इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? ये जो पूरा डेटा है ना, इसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ द डेटा मतलब पूरा डेटा, ऐसे समझ लो। और उसके बाद सैम्पलिंग वगैरह वो तो हम आगे उसको जब शुरू करेंगे थ्योरम वगैरह देखना। लेकिन सैम्पलिंग क्या हो सकता है गाइस? तो सैम्पलिंग मतलब एक छोटा पोर्शन, इस पॉपुलेशन में उठाया हुआ एक छोटा सा सैंपल, ठीक है। तो अभी इस पॉपुलेशन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इसमें दिखा क्या रहा है? वेल्थ। तो वेल्थ में ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे कर दो, चलो 5000 से शुरुआत करते, 5000 से लेके ऐसे समझो कि ये बिलियन तक है। हाँ, मैं एक आप अंदाजा लगा दो, एकदम छोटे से लेके एकदम बिलियन तक अगर जा रहा है, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन तक ले लेते हैं, चलो 3 ट्रिलियन ऐसे समझ लो, 3 ट्रिलियन, ठीक है। ये अमाउंट है, हाँ, दिस इज अमाउंट इन रुपीज, डॉलर, जो भी है, ठीक है। तो गाइस, आप अगर यहां से इस डेटा को, या दिस डेटा इज नथिंग बट द द डेटा ऑफ द पीपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ, एंड दिस इज द काउंट, कितना काउंट है उन लोगों का, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि भाई एकदम गरीब लोग रहते हैं, एकदम बेसिक, उनका जो ईयरली इनकम भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो जैसे मतलब कैसे तो उनका घर धकता है, चलता है, ठीक है। जैसे जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो डेंसिटी है ना, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ पीपल, मतलब जिनको हम बोलेंगे कि मिडल लेयर, उस टाइप के, नहीं क्या, एक लेयर जो रहते हैं लोअर, मतलब जो गरीब, उसके बाद थोड़ा मिडल, अपर मिडल, और उसके बाद एकदम रिच लोग, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन है, दिस पॉपुलेशन शोज के व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। और उसके बाद अगर मैं, दिस इज इन रियलिटी, हाँ, रियलिटी वाला एग्जांपल, मतलब अभी दुनिया में अगर हम ऐसा रैंडमली अगर लेंगे पूरा पॉपुलेशन में, तो ये होगा कि आपको मिडिल क्लास में ज्यादा पॉपुलेशन दिखेगी। उसके बाद जो रीच वाले, जैसे बोलते कि भाई 95% ऑफ पीपल, उसके बाद जो 5% ऑफ पीपल हु आर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, तो ये पॉपुलेशन में 5% का जो डेटा है वो रिच पीपल का है। उसके बाद अगर 10% से लेके अगर आप बोलेगे 95%, तो इसमें मिडिल क्लास है, और उसके बाद ये सब गरीब लोग हैं, या मे बी इधर उधर हो सकता है, बट यू कैन कंसिडर दैट सिनेरियो। तो इस केस में ये जो स्क्यूनेस जो दिखाई दे रहा है ना हमको, स्क्यूनेस मतलब क्या? कि भाई ट्रिलियन कमाने वाले, उनका जो वेल्थ है वो काफी कम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूं, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था एक 500,000 10 की, तो चलो यहाँ पे ऐसे समझ लो, पांच पांच 5000 जो नंबर है, उतना उतने लोग हैं पूरी दुनिया में कि जिनका 3 ट्रिलियन। तो दैट्स व्हाई दिस इज, ये नीचे दिख रहा है आपको बराबर, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, तो ये डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, एंड देन धीरे धीरे घटते आ गई। हाँ, और यहाँ पे जो शुरू हुआ था इनिशियली, तो उनका बहुत इनकम कम है, एंड दिस इज वेल्थ एंड द नंबर ऑफ पीपल। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मतलब गरीब लोग, फिर उसके बाद मिडिल क्लास, एंड देन द रिच पर्सन। सो इस केस में आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो दिस डेटा इज स्क्यूड टुवर्ड द राइट, ठीक है। तो अभी ऐसे डेटा को कैसे हैंडल करना, कैसे नॉर्मलाइज करना, कैसे स्टैंडर्ड स्केलर उस पे अप्लाई करके फिर मशीन लर्निंग को देना लर्निंग के लिए। फिर ये आउटलायर्स जो भी है, ये यहाँ पे आउटलायर्स है। फिर आउटलायर्स क्यों गाइस? अगर हम पूरे पॉपुलेशन में अगर देखेंगे, चलो आउटलायर्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कटोसिस आपको यहाँ पे, जब भी कटोसिस बोलते हैं ना, तो यू कैन कंसिडर द टेल्ड,
टेलनेस, ओके, एंड द पीक। तो पीक पे भी कभी कभी जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलते हैं हमको, तो डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो एक होता है आपका निगेटिव कर्टोसिस, उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद ऐसे पीक दिखता है एंड ऐसे टेल दिखते हैं। तो दैट इज योर निगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव कर्टोसिस। ये इसके बारे में हम ग्राफ में ही दिखेंगे, जब प्लॉटिंग करेंगे तो मैं आपको कर्टोसिस, वहां पे टेलनेस और ये जो पीक पे कर्टोसिस रहते हैं वो दिखा दूंगा, ठीक है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू डील विद दिस डेटा। सो नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्ड स्केलर, इसको हम प्रैक्टिकली जब हम ईडीए के तरफ जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के एंड में जाएंगे, तब हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये जो अभी इसका पर्पज जो था ये शेप दिखाने का, तो आपको जब राइट स्क्यू, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, हाँ, ये वेल्थ और नंबर ऑफ पीपल का एक एग्जांपल था। हम रियल डेटा में ऐसे बहुत बार आपको ऐसे स्क्यूड अगर डेटा मिलता है, तो यू कैन से फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डेटा इज नॉट इन अ बैलेंस्ड फॉर्मेट। तो पहला आपको ऑब्जर्वेशन, जब भी आप ईडीए पे जब कंक्लूजन निकालोगे, तो फर्स्ट टाइम यू जो ऑब्जर्वेशन, अगर ऐसा अगर कुछ मिलता है आपको, तो आप बोलोगे कि डेटा इज नॉट इन अ बैलेंस फॉर्मेट, ठीक है, बैलेंस शेप और जो भी। तो ये हो गया एक एग्जांपल ऑफ किसका, राइट स्क्यूड वाला डेटा का। अगर इसको आप लेफ्ट स्क्यू का अगर कोई एग्जांपल बता सकता है तो प्लीज कंटिन्यू, अदरवाइज एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम आगे बढ़ जाएंगे। वन सेकेंड ना। कर्टोसिस आप बोले कि जहाँ पर ये डेटा का एंड पॉइंट रहता है वो, और जहाँ पर एंट्री पीक पॉइंट रहता और है। एंड पॉइंट, हाँ, एंड पॉइंट पे। तो कैसे होता है ना, एक सेकेंड ना, उसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसे आपको बहुत कम नंबर, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो है ना, ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम है। तो एक्सट्रीम में यहाँ पे आपको जो पूरा पॉपुलेशन है, ये जो एंटायर पॉपुलेशन में एक्सट्रीम लेवल पे आपको एकदम रेयर, मतलब 1% और इवन लेस देन 1% डेटा आपको जो मिलेगा ना, तो दैट इज नथिंग बट योर आउटलायर्स। तो आउटलायर्स का मैं प्रॉपर एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन ये जो रेंज होती ना, ये रेंज, ये टेलनेस, और यहाँ पे जो पीक होते हैं डेटा में, जब हम एक्चुअल पे देखेंगे तो ऐसे पीक आपको दिखेंगे। तो दैट इज नथिंग बट कटोसिस। तो कटोसिस मतलब ये जो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे कटोसिस जीरो रहता है। एक बात, कटोसिस उस पे जीरो रहेगा। एक सेकेंड है, मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा एक ऐसे निकाल निकाल के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गई। लेट मी जस्ट, ओके, स्क्रॉलिंग मेरे को ये डायग्राम में बंद करनी पड़ेगी। ओके, वन सेकेंड है गाइस, लेट मी क्लियर ऑल ड्रॉइंग्स। ओके, जब ये स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, मुझे इसको हाइड करने दीजिए, ये बीच बीच में आ रहा है, इसलिए आई एम नॉट एबल टू टेक दिस वाला पार्ट। तो यहाँ से मैं उठा रहा था, जो अपने जूम जूम देता है उसको, ठीक है, वन से कंट्रोल से। हाँ, ठीक है गाइस, अभी हाँ, ये राइट स्क्यूड हो गया। लेफ्ट स्क्यूड का कोई एग्जांपल दे सकता है जिसका मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा आपको डेटा में, ऐसा वाला डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा। तो ये डेटा इज स्क्यूड टुवर्ड टुवर्ड लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसका कोई एग्जांपल दे सकता है, जैसे आपने हमने अभी जो देखा राइट स्क्यूड था, तो एक्स एक्स क्यूड का मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हाँ, ये एक्स एक्सिस है इधर का, और ये वाई एक्सिस है, और ये जो डेटा है लेफ्ट स्क्यूड है। तो कोई एग्जांपल कोई अभी गेस कर सकता है इस पे कि क्या हो सकता है एग्जांपल, ठीक है। यस गाइस, इफ यू कैन ट्राई। कुछ नहीं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो जैसे एक पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट एक एग्जांपल में देखा कि कैसे होता है ना, एक हमने वेल्थ के हिसाब से देखा। अभी यहाँ पे अगर किसी ने ट्राई किया होगा, किसी ने, मतलब मैंने एक्सरसाइज के लिए आपको होमवर्क दिया था, बट इट्स ओके, चलो आगे बढ़ते, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। तो ऐसे कंसिडर करो, इसको भी नंबर ऑफ पीपल ही समझो। ये जो है ना, ये जो एक्स एक्सिस पे जो आपका डेटा आने वाला है, नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ पे ऐसे समझो 5 के, उसके बाद 10 के, वही वाला चीज 10 के। हाँ, ये एग्जांपल जल्दी अंडरस्टैंड होगा, नंबर ऑफ पीपल वाला, इसलिए वी आर पर्सन डिस्कसिंग ऑन दैट। लिविंग मतलब एज के हिसाब से। आ एज के हिसाब से, ओके, हाँ, यस यस, इसके दैट इज हिसाब गुड। से। यस, लाइफ मतलब स्पैन आप डेथ बोल सकते डेथ हैं, यस, रेट करेक्ट डेथ करेक्ट रेट करेक्ट, डेथ या, रेट बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी गुड एग्जांपल, लाइफ स्पैन अगर बोलेंगे, लाइफ स्पैन, हाँ। तो देखो लाइफ स्पैन में कैसा, इसको अभी समझते हैं, ये भी तो नंबर ही है, यहाँ पे नंबर है, ऐसे समझो, यहाँ पे भी ऐसे नंबर है, 5 के, उसके बाद 10 के। हाँ, इसको बाद में प्रॉपर करेंगे गाइस, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन होता है, शेप कैसे डिफाइन होता है, एंड राइट स्क्यू लेफ्ट स्क्यू कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे समझो कि भाई हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे यार इसमें, मैं अगर यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ 10 करोड़, हाँ, तो यहाँ पे ये 10 करोड़ नहीं बोलेंगे, सॉरी सॉरी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइफ स्पैन ना। तो इसको है ना, इसको एक सेकंड, तो लाइफ स्पैन मतलब ईयर में अगर बोल रहे हैं ना अपन, ईयर में,
लाइफ स्पैन को ईयर में बोल रहे तो ये 5 के 10 के नहीं रहेगा, ऐसे समझो कि 5 ईयर्स रहेगा। ईयर्स बोल रहे ना वी आर, दिस इज ईयर लाइफ स्पैन ईयर्स। उसके बाद है अपना ये 10 ईयर्स, यहाँ पे ऐसे समझो ये डेटा यहाँ से 2020 है 20 ईयर्स, और यहाँ पे जाके ऐसे समझो 60 या 70 तक ले लेते, 70 ईयर्स। और उसके बाद आ गया आपका 80, ऐसे 80 ईयर्स, और लेट से 100 ईयर्स, 100 ईयर्स समझ लो। हाँ, ये अपना लाइफ स्पैन है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल है, लाइफ स्पैन है। तो लाइफ स्पैन में ये देखो, ये जो यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको फिगर्स के 5 के 10 के, तो हो सकता है भाई बच्चा हुआ और कुछ एक्सीडेंटल में गया, कुछ उसको मतलब दिल में छेद थे या कुछ भी है, अन लाइक अनफॉर्चुनेटली कुछ डेथ हुई, एक्सीडेंटल हुआ, जो भी हुआ, तो ये उसकी लाइफ स्पैन यहीं पे खत्म हो गई, उसकी लाइफ स्पैन यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस पॉइंट्स आर शोइंग यू कि उसका लाइफ स्पैन। हाँ, ये 10 ईयर्स के बाद ये जो 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 50 ईयर्स, उसके बाद 70 ईयर्स, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो अपनी मिलेगी पॉपुलेशन में, तो ये सीन रहता है अपना जनरली। और उसके बाद ये जो छोटा होते गया फिर से इस नंबर में, तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो 70 अबो मतलब 80 ईयर्स तक जीते हैं, उसके बाद 100 ईयर्स तक जीते हैं ना, तो यहाँ पे ये छोटा हो गया नंबर। तो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर कि भाई आवर डेटा फ्रॉम, एंड दिस इज रियल लाइफ, रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब जो भी अपना जो जनरल एक लाइफ स्पैन है लोगों का, तो मैक्सिमम मतलब 70 ईयर्स तक पॉपुलेशन आपको मिलती है। धीरे धीरे ये स्क्यूनेस और कम होते जाएगा, 60 तक एज रहता है, फिर 70 तक डेथ हो जाती है, ये वाला चीज। तो दिस काइंड ऑफ स्क्यूनेस यू कैन ऑब्जर्व इन योर डेटा। तो लाइफ स्पैन अगेंस्ट नंबर ऑफ पीपल अगर आप स्क्यूनेस देखोगे तो आपको ऐसा वाला डेटा डिस्ट्रीब्यूट मिलेगा। दिस इज रियल, दिस इज द एग्जांपल, बट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन डेटा रहेगा या फिर कोई भी आपको डेटा मिलेगा, उसका जब आप डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब डेंसिटी एस्टिमेशन, डेंसिटी जब उसकी निकालोगे, डेंसिटी मतलब क्या होता है गाइस, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होती है। अब ये तो यहाँ पे भी इसको आप पॉपुलेशन कवर कंसिडर करो, तो जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन ना, तो पॉपुलेशन से ऐसे नहीं कि अपन हमेशा पीपल और उनकी पॉपुलेशन नहीं, अपने केस में हमेशा हम जो भी डेटा एक्सप्लोर करेंगे, तो हो सकता है वो कोई भी डेटा हो, कौन सा भी डेटा हो, न्यूमेरिक डेटा हो या टेक्स्ट डेटा हो, उसको फिर जो भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ना, तो यहाँ पे हमको जो डेंसिटी मिलती है, तो दिस इज नथिंग बट डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोवेस्ट डेंसिटी है और यहाँ पे हाई, बट यहाँ पे भी लोवेस्ट है, बट यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो जो ये जो डेंसिटी जहाँ पे डिफाइन होती है ना, वो डेंसिटी हमको बताती है कि स्क्यूड डेटा कहाँ पे स्क्यूड है ज्यादा। ठीक है, तो ये इस रेंज में ये डेटा यहाँ पे उस आप देख सकते हो। फिर बाद में जैसे मैंने बोला, चलो अभी आउटलायर पे आते हैं। ठीक है, आउटलायर पे आते हैं अभी। तो गाइस हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं किसी क्लास का। ठीक है, किसी क्लास में अगर ऐसे है कि भाई 50 बच्चे हैं, 50। ठीक है, 50 बंदे हैं एक क्लास में, और उनकी हाइट कैलकुलेट की, बंदों की हाइट कैलकुलेट किया। ठीक है, हाइट, HEIGHT, हाइट कैलकुलेट किया। तो और हाइट कैलकुलेट, और ऐसे समझो कि ये बच्चे हैं, ये है अपने 5th स्टैंडर्ड के बच्चे, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जिनका हाइट कैलकुलेट हुआ, और मेजरमेंट में लिखा और उसका एक डेटा बना। ठीक है, तो डेटा कैसे है भाई, अगर आप सेंटीमीटर में हाइट इनकी कैलकुलेट करने जाओगे तो चलो 140 cm, ठीक है, या इंच वगैरह आप जो भी लोगे, लेकिन सेंटीमीटर में ऐसे होते हैं 140 cm, फिर 145 cm, और अपने 50 बच्चे हैं, तो सबका हाइट कैलकुलेट हुआ और उसका डेटा बना। और उसमें क्या हो गया, ऐसे कंसिडर करो कि एक क्लास में एकदम छोटा नाटा बच्चा है जिसकी हाइट है उसकी यार 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और 90 सेंटीमीटर यहाँ पे या इस डेटा में उसने डाल दिया 90 सेंटीमीटर एक बच्चे की। हाँ, और एक बच्चा है डायरेक्ट 7.5 फीट का है, मतलब किसी वजह से उसका हाइट एकदम जटाक से बढ़ गया बाम्बू जैसा, उसके जेनेटिक कुछ रीजन होगा या क्या। तो अभी 7 फीट मतलब वो दैट इज नियर अबाउट 200, एक 180 का 6 फीट होता है गाइस, तो नियर अबाउट, चलो मैं 190 ऐसे बोलते हो, 7 फीट भी नहीं, 190 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। और यहाँ पे बच्चे सब एक 40, एक 45, एक 50, एक 60, ज्यादा से ज्यादा एक 60 के रेंज में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है अपना। ठीक है, सिर्फ दो बंदे ऐसे निकले कि एक की हाइट डायरेक्ट 190 सेंटीमीटर और एक की हाइट 90 सेंटीमीटर। तो गाइज आप कंसिडर करो कि ऐसे बच्चे अगर है आपके पॉपुलेशन में, ये डेटा में, तो व्हाट यू विल से। तो भाई ये जो ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं, आउटलायर्स, मतलब दीज आर नॉट फिटिंग इन आवर नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और जनरल पॉपुलेशन। तो ऐसे समझो कि ये पूरा से ये अपना से ये हाइट का डेटा था और इस रेंज में सब तो आ रहे हैं, लेकिन ना
एक बंदा जिसकी हाइट डायरेक्ट 190, तो वो यहाँ पे किधर तो दिख रहा है आपको, और एक बंदा ऐसा है जिसकी 90 सेंटीमीटर नाटा है यहाँ पे। तो सब डेटा तो अपना प्रॉपर है, लेकिन सिर्फ ये दो डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं, दोज आर नॉट इवन रिलाइंग इन द डेटा, दीज आर आउट ऑफ द बॉक्स, आउट जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में इन इन डेटा पॉइंट्स को हम बोलते हैं आउटलायर्स। ठीक है, आउटलायर्स का ये कंसेप्ट है गाइस। तो दैट्स व्हाई आउटलायर्स आर डिटेक्टेड वेयर, जैसे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया कि देखो ये तो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा अगर है तो इट्स ओके, बट ऐसा और ऐसा टेल अगर आपको दिखने लगे लंबी, तो यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स मिलेंगे ना, ये आपको मिलेंगे आउटलायर्स। उसके बाद कभी कभी ऐसे और ऐसे पिक मिलते हैं डेटा में। तो यहाँ पे ये जो एक्सट्रीम लेवल पे जो मिलता है एकदम, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था, किसी किसी की डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही फ्रेशर की सैलरी दे दी, उसका पैकेज बोल दिया 50 लाख का, और जनरली जो भी है बाकी के बेचारे वो चल रहे हैं अपने नॉर्मल पैकेज से, तो ये आउटलायर हो गया। तो भाई ऐसे आउटलायर्स है ना, अगर हम कंसिडर करेंगे मशीन को लर्निंग के लिए और देंगे मशीन को, तो भाई मशीन तो ये प्रॉपर नॉर्मल डेटा पे तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेगा, बट अगर आउटलायर देंगे तो मशीन को डिसीजन लेना थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा कि भाई मतलब इट इज लर्निंग द रिलेशनशिप पैटर्न्स फ्रॉम दिस डेटा प्रॉपरली, बट व्हेन दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस कम इनटू द मशीन फॉर लर्निंग, इट विल अगेन स्टार्टेड लाइक कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ऐसे केस में फिर जो भी आउटपुट देंगे तो उसमें क्या कंसिडर करेंगे। एंड दैट्स व्हाई आउटलायर डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग in the in the data pre-processing, cleaning, or even dealing with data, or generating like creating a machine learning model or training a machine learning model on the data। ठीक है, अभी एक एक नॉर्मल वाला एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, और उसके लिए सपोज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो आप, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी है, तो उसके लिए कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर है, चैप्टर है, यूनिट्स है, सब डिफाइन दिया है, सब आपको पता है कि कौन से चैप्टर, ये सब इतना सिलेबस आने वाला है, इतना सिलेबस आने वाला है, तो आप इसमें पढ़ोगे, इसी सिलेबस से पढ़ोगे। लेकिन कभी कभी आपको भी पता है एग्जाम में क्या होता था कि भाई सिलेबस के बाहर का एक क्वेश्चन डाल देते थे, जस्ट टू चेक कि आप क्या फिर उस टाइम में ऐसे कैसे डील करते हो, क्या आंसर लिखते हो। कभी कभी ऐसे होता था कुछ, अगर प्रोफेसर या टीचर लोग जो भी रहते, जस्ट टू चेक द जनरल या काइंड ऑफ योर आंसर, और आप किस तरीके से उसका आंसर देते हो। कभी कभी फिर हम डिस्कस करते हैं भाई जो भी आया आउट ऑफ द सिलेबस आया है, तो उसके बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको लगता है, और जो बंदा अच्छा रहता है वो तो उसका आंसर दे ही देता है, बट मैक्सिमम पॉपुलेशन उस टाइम पे क्या हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है कि भाई हमने तो ये पढ़ा था, इस और जो जो क्वेश्चन आया तो आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये आउट ऑफ सिलेबस वाला कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है नॉर्मल पॉपुलेशन और जनरल एक लर्निंग के लिए। तो सेम वे से ये आउटलायर्स भी वैसे ही रहते हैं, अगर डेटा में रहेंगे, होते हैं तो बहुत मिनिमम नंबर वाले, लेकिन फिर मशीन लर्निंग को कंफ्यूज, उसका जो इन्फरेंस है, इन्फरेंस, तो इन्फरेंस वर्ड आप ध्यान में रखिए। हम जनरली अगर स्टैंडर्ड वे से बोलेंगे तो रिस्पॉन्स नहीं बोलते हम, रिस्पॉन्स अगर किसी को पता होगा, रिस्पॉन्स जो एपीआई हमको कुछ रिस्पॉन्स देता है ना, हम अगर कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एपीआई हमको रिस्पॉन्स देता है, रिटर्न में कुछ वैल्यू, रिटर्न में कुछ डेटा देता है, दैट इज रिस्पॉन्स। बट इन आवर टर्मिनोलॉजी ऑफ मशीन लर्निंग, हम मॉडल का जो भी आएगा रिजल्ट, उसको हम रिस्पॉन्स तो नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं इन्फरेंसेस, इन्फरेंसेस। और हमने स्टैटिस्टिक्स जब चालू किया था तो मैंने वो डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कल के सेशन में आपको बताया। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, इन्फरेंस मतलब क्या, अनुमान। तो मशीन जो भी आपको देगा ना वो प्रेडिक्शंस होते हैं, इन्फरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये इन्फरेंस टर्मिनोलॉजी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये वर्ड बहुत यूज होगा, इवन इन द इंडस्ट्री ना, जब भी काम करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं मॉडल्स का परफॉर्मेंस वगैरह, तब भी मतलब 70 बिलियन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वगैरह, तो हम जनरली इन्फरेंस ही बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके गाइस, तो ये इन्फरेंस इसलिए आया पिक्चर में कि आउटलायर्स के अगर डिटेक्ट होते हैं डेटा में, तो देन यू विल बी फाइंडिंग द फ्लक्चुएशंस इन द इन्फरेंसेस, रेयर मतलब कुछ सर्टेन लेवल तक अगर आउटलायर्स रहेंगे तब, ठीक है। लेकिन ये आउटलायर्स जनरली हम उसको टेक केयर करते हैं जब हम प्री प्रोसेसिंग के लिए बढ़ेंगे, मतलब ईडीए के सेशन में बढ़ेंगे, तो हाउ टू डील विथ आउटलायर्स उसमें हैंडल किया है, इसलिए हम ऐसा आउटलायर वाला डेटा मशीन को नहीं देते लर्निंग के लिए, उसको स्टैंडर्ड्स वेब से कंसिडर करते हैं। तो आउटलायर ये टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर हो गई, कर्टोसिस पे हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स भी हमने ले लिए। एक काम करते हैं, इसको अभी प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली देखेंगे, फिर कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्या होता है, इसकी कंसेप्ट क्लियर करूंगा। कैटेगरिकल और नॉर्मिनल, ऑर्डिनल और नॉर्मिनल डेटा जो होता है इन 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 द फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल वाला पार्ट, बिकॉज प्रैक्टिकली ये सब हमने जो डिस्कस किया ना,
ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए इसने टाइम लिया, बट जब प्रैक्टिकली इसको देखेंगे ना हम, तो इन वन वन लाइन का कोड है इस पाइथन में, और उस एक लाइन के कोड में सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड ना, इससे इसके नहीं हो रहा है, स्टक हो गया स्क्रीन मेरा। ओके, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ guys, ये यहाँ से स्केप नहीं हो रहा है एक्चुअली। इसी रीजन से मैं आज थोड़ा क्लीनिंग भी किया मेरे मशीन को, क्योंकि मेरा सी ड्राइव पूरा फुल हो गया था ना। जस्ट सेकेंड ना, आई एम री शेयरिंग द स्क्रीन, प्लीज कंफर्म माई स्क्रीन इज विजिबल। ओ सी ओके, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। आई होप कि अभी नहीं होना चाहिए फिर से। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम, बट इट्स ओके। ओके गाइस, तो प्रैक्टिकली देखते हैं, लेट मी ओपन आवर VS कोड एंड लेट्स मूव। ठीक है, ये सेव का मैं बाद में कर लूंगा, डायरेक्ट रन करते हैं इसको। Shit. हाँ, ओके, लेट मी जस्ट चेक, बिकॉज एज आई सेड ना, मैंने थोड़ा क्लीन अप का काम किया आज, कुछ चल रहा है कि नहीं, लेट मी देख। प्रिंट ओके ठीक है गाइज, लेट मी मूव टू द जुपिटर नोटबुक। अभी आज के लिए मैं ये VS कोड नहीं दिखा था, बिकॉज देर आर सम एरर्स एंड इश्यूज, मे बी वो क्लीनअप की वजह से हुआ है, बट आई एम नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस। तो हमारे पास जैसे हमने फर्स्ट सेशन में लिया था कि जुपिटर नोटबुक और देन VS कोड एंड गूगल कोलैब, तो लेट्स सी जुपिटर नोटबुक चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चलता तो गाइज उसके लिए अल्टरनेटिव है, अपन गूगल कोलैब्स पे जाएंगे, ठीक है, एंड देन आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। ये VS कोड का विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई होप कि आपके इसमें जुपिटर नोटबुक में आप लोगों ने इंस्टॉल किए होंगे। ओके, जुपिटर नोटबुक इज वर्किंग फाइन। ओपन हो रहा है, या इट इज रनिंग एक्चुअली, बिकॉज अगर रन नहीं होता तो फिर यहाँ पे ही वो एरर आ जाता। लेट्स सी। अच्छा, ओके, ये ओपन हो गया। तो ओके गाइस, लेट मी गो टू द न्यू नोटबुक, लेट मी क्रिएट दिस न्यू नोटबुक एंड वी विल सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एक्चुअली। ये क्या हो गया था, मेरा सी ड्राइव पूरा फुल हो गया, एम्प्टी हो गया, मतलब पूरा रेड आ गया था, तो हैंग हो गया था मेरा सिस्टम, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट मैंने कुछ क्लीन अप किया, और ये सब सेटअप मेरा इंस्टॉलेशन वगैरह सब हिल गया है, बट इट्स ओके। तो ओके, लेट्स इंपोर्ट आवर लाइब्रेरीज। इंपोर्ट तो क्या क्या इंपोर्ट करते हैं हम जनरली, क्योंकि वी आर नाउ लुकिंग इनटू द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ आवर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन वी विल बी सीइंग द रेंज एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। तो गाइस, कोई बता सकता है मुझे कि हम जनरली क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी हमको लगने वाला है, क्योंकि बिकॉज वी हैव कवर्ड दिस थिंग्स इन आवर पाइथन, पाइथन फॉर मशीन लर्निंग। यस गाइस, क्या क्या लगेगा, एनी गेस? पांडा, पांडास numpy, लगेगा, नमपाइन तो डेफिनेटली लगेगा हमको। अच्छा, एक से, हाँ ठीक मैटप्लॉटलिब। है, एग्जीक्यूट हो गया होपफुली, चलो चल गया। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती गाइस तो इट्स ओके, आई विल ओपन द गूगल कोलैब और फिर वहां पे मैं कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो बाकी के इंपोर्ट पांडास वगैरह वो भी इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट पांडास एज PD। उसके बाद मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब, चलो मैटप्लॉट, हाँ अगर कुछ प्लॉट करना है तो उसको भी कर लेते हैं। दिस आर द बेसिक, हाँ जैसे हम जो भी कोडिंग वगैरह, आपको पता है कि कोडिंग में शुरू में जो जो आप रिक्वायरमेंट्स लगते हैं हम उसको जस्ट इंपोर्ट करके रखते हैं, जब लगेंगे तो उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, पाइप प्लॉट, यहाँ पे अभी एक क्या है वो VS कोड में क्या होता था, मेरे को मिल जाता था ना पटाख से, तो वो टाइम भी सेविंग था और पटाख से हो जाता था सब। यहाँ पे ऑटो पायलट मुझे दे देता था जो भी है। उसके बाद अपने को इम्पोर्ट सी बॉन्ड भी लगता है ना, ये स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है तो मुझे बताना गाइस, बिकॉज यहाँ पे अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग ही है। चलो सी बॉन्ड, SPD ने सी बॉन्ड एस SN S करके इम्पोर्ट करेंगे।
और क्या लगेगा, चलो जो भी लगेगा वो बाद में देख लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, बट दीज आर द रिक्वायर्ड थिंग्स। एग्जीक्यूट, इट इज एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, ये लोड हो रहा है, रन हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। मे बी कैशे वगैरह वो सब अननेसेसरी जो डम जो भी फाइल्स थी, जंक फाइल्स, वो सब मैं क्लीन कर रहा था। उसी क्लीनिंग में कुछ अनइंस्टॉलेशन जो भी हो गए, जो लगने वाले थे। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, ये तो रन हो गया। ठीक है, आई होप कि ये आपके लिए नया नहीं है गाइस, मैंने फर्स्ट सेशन में सब क्लियर किया है। तो चलो एक काम करते हैं, डेटा लेते हैं अभी। और डेटा एक सिंपल फॉर्मेट में, एक जस्ट, एंड ये हमेशा नहीं रहेगा जो मैं अभी डेटा ले रहा हूँ ना, ये आपको एक बेसिक बेसिक लेवल से डेटा आपको दे रहा हूँ, बट जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे ना गाइस, 3 लेता हूँ, उसके बाद 1 2, तो मैं 2 इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मोड अगर रहेगा, और कितने मल्टी, ठीक है 3, उसके बाद चलो मैं बोलता हूँ 4, फिर लेट मी जस्ट राइट, हम 4 4, फिर उसके बाद इसको अगर 3 बार मैं देता हूँ, तो वी वी विल बी क्लियर विद द मोड वाला कंसेप्ट एज वेल, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग 6 लेता हूँ। और जैसे मैंने बोला गाइस, देखो हमारा जो टारगेट है वो तो पहुंचना है अपने को 100 तक, मतलब मैं ऐसे यहाँ पे 100 ले लिया, 100 तक जाना है। मतलब अपना जो एआई वगैरह उसमें एफिशिएंसी, वहां तक तो जाना है अपने को गाइस, पर शुरू हम हमेशा 1 से होती है, कहाँ जाना है ना टॉप पे, तो बॉटम से ही शुरुआत होती है। तो दैट्स व्हाई गाइस, ये जो डेटा ले रहा हूं मैं, छोटा डेटा है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, कॉम्प्लिकेटेड डेटा, रियल लाइफ डेटा सब आपको दिखाऊंगा, सब आप लेके आएंगे हम। इनवैलिड सिंटैक्स क्यों, या बिकॉज ऑफ दिस ना। ठीक है, तो ओके, डेटा हमने ले लिया गाइस, इसी डेटा को अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते। तो एक्सप्लोर के लिए अगर मैं अगर इसको, बिकॉज वी वांट टू डू सम कैलकुलेशंस ना। ओके, तो कैलकुलेशंस के लिए लेट्स 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 डू वन थिंग। इसको अगर मैं सीरीज, ठीक है, जनरल सीरीज बना रहा मैं, बिकॉज सीरीज वाई, जनरली पांडास में हमने देखा है कि एनी रो वी कंसिडर इट एज अ सीरीज। तो एक रो कंसिडर कर रहा हूं और उसमें मैं उसको दे रहा हूं डेटा। ठीक है, ओके, ये सीरीज है गाइस, तो आप इसका टाइप अगर देखोगे तो प्रिंट करेगा सीरीज ही, सीरीज हमने ले लिया, सीरीज का हमको प्रिंट करते आता है डेटा का हर एक चीज। और नाउ एज दिस इज अ पांडास डेटा सीरीज, तो वी विल बी अप्लाइंग द पांडास फंक्शंस अभी इसके ऊपर, हाँ। तो अगर चलो हमने क्या क्या देखा था, चलो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने गाइस क्या देखा था, हमने देखा मीन, बराबर। तो अगर मीन हम्म। कैलकुलेट करना है तो एकदम जैसे मैंने बोला कि हमने कैलकुलेशन मैन्युअली किया था, सब नंबर को लेके उनका एडिशन करके फिर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो अभी इसमें एकदम इजी वाली चीज क्या है बताए, मैं अगर सीरीज डॉट मीन ले लूंगा, पांडास का जो फंक्शन है उसको अगर लूंगा और प्रिंट करूंगा ना, प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, लेट मी प्रिंट और हियर ऐसे, यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है डायरेक्ट, जो जुपिटर में होता है देखो। तो ये इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना और मीन निकालोगे, तो मीन आएगा अपना 12.54 समथिंग। ठीक है गाइस, तो मीन ऐसे एकदम पटक से निकल गया, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। मीन के बाद क्या था, कोई बताएगा, क्या था मीन, मोड। मेन मोड मेडियन। हाँ, तो मोड को अगर देखेंगे तो कैसे करेंगे, सीरीज डॉट डायरेक्ट वाला फंक्शन अपना जो भी है, मोड वाला फंक्शन उसमें डालेंगे मोड को। लेट मी चेक मोड एग्जीक्यूट हो रहा है क्या। ठीक है, मोड एग्जीक्यूट हो गया, लेट्स, इसमें क्या मिलता है मोड में, यहीं पे प्रिंट कर देता हूँ उसको, मोड। ठीक है, तो मोड मिला 4 गाइस, हाँ। इसका अगर कोई वैल्यूज करके है क्या, जस्ट चेकिंग है गाइस, वैल्यूज, वैल्यूज, हाँ ठीक है, यहाँ से थोड़ा अच्छा दिखता है इसलिए, हाँ। तो देखो मोड में क्या मिला अपने को, 4। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, हमने मोड देखा था लास्ट सेशन में, तो मोड यहाँ पे 4 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज द रिपीटेशन ऑफ 2 का भी रिपीटेशन है, बट 4 का रिपीटेशन ज्यादा है। और मोड में हमने क्या देखा था कि अपने डेटा पॉइंट्स में जो भी डेटा पॉइंट है, जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज आवर मोड। ठीक है, दैट इज आवर मोड एंड इट इज अ 4। ठीक है, मोड था, और क्या था गाइस प्लीज, मेडियन। मीडियन था, या जस्ट रेज, ये सिस्टम का वॉल्यूम अच्छा ज्यादा है, लेकिन मुझे आवाज कम आ रहा है। ठीक है, मीडियन था, तो मीडियन कैसे प्रिंट करेंगे, यस गाइस, सीरीज, सीरीज डॉट मीडियन ना। तो ये सब आपको जस्ट आपको भी एक एक्सरसाइज करनी है, अगर जब भी आएगा आपको करना है, नहीं करना है, प्रैक्टिस हैंड्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, मीडियन भी 4 है इसकी। ठीक है, बाद में आप इसको कैलकुलेट कर लेना, और उसकी मीडियन 4 ही निकलेगी, हाँ। कैसे निकलेगी, क्या निकलेगी,
ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कितने डेटा पॉइंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में सेंटर बराबर 4 आ गया, और ये सॉर्टिंग ही था इसलिए 4 आ गया। ठीक है, इसको ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये तीन चीजें हमने देख ली, और क्या था जो हमेशा लगने वाला है? वो था अपना वेरियंस। वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको क्या करना है उसको लेने के लिए? ठीक है, ये तो जनरली जब आगे बढ़ेंगे ये एक लाइन का फंक्शन आपको सिर्फ कॉल करना है, लेकिन कैसे कॉल करना है या कैसे लेना या लिया भी रहेगा, तो सिर्फ आपको समझ जाना है कि भाई जो भी चीज है तो वेर से वेरिएंस आपको मिलेगा, जो हमने कल उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कस किया था कि परसों, सॉरी नॉट कल बट डे बिफोर यस्टरडे हमने डिस्कस किया वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां पे देखा। और ये कैलकुलेट करके देखो ये वाली वैल्यू मिली वेरिएंस की, वो स्क्वायर था ना। उसके बाद और स्क्वायर रूट लेने के बाद हमको मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मिलेगा? सीरीज। यस गाइस, क्या होगा उसके लिए फंक्शन? स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ एसटीडी ना। लेट्स सी, हाँ सीरीज डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें मिलेगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब क्या? वेरिएंस का वो स्क्वायर रूट निकाल लो। तो ये जो है एकदम इजी वाला पार्ट है, इसलिए पाइथन के ये पांडास फंक्शन, नमपाई फंक्शन इजीली हमको सब कैलकुलेशन मिल जाएगा। यस्टरडे हमने सिर्फ मैन्युअली कैलकुलेट करके उसको एक्सप्लोर किया और देखा। ठीक है गाइस, और एक चीज, अगर मैं इसको स्क्यूनेस अगर देखता हूं, बिकॉज यहाँ पे स्क्यूनेस है, व्हाई? यू कैन सी 100 इज देयर इन योर डेटा। तो डायरेक्ट आउटलायर एकदम लास्ट एंड पे आपको 100 मिल रहा है। तो इसको अगर स्क्यूनेस अगर आपको चाहिए, तो सीरीज डॉट फंक्शन स्क्यू। ठीक है, तो ये स्क्यूनेस दे रहा है अपने को, मतलब ऐसे आपकी वैल्यू मिलेगी। एक काम करते हैं, इसको प्लॉटिंग करेंगे अपन, प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या होता है एक्चुअली। तो स्क्यूनेस और कटऑसिस भी आपको ऐसे वाले फंक्शन से मिल जाएगा गाइस। तो ये आपको जस्ट एक हैंड्स ऑन होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज ये तो डायरेक्ट जब अल्गोरिदम्स वगैरह उसमें डायरेक्ट एक लाइन में कैलकुलेट किए हुए रहेंगे, और जब दिखेगा आपको ऐसा कुछ, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नया कुछ दिख रहा है भाई। तो दिस इज कटऑसिस, हाँ। कटऑसिस इन फिगर, देन स्क्यूनेस इज इन फिगर। ठीक है, एक काम करते हैं अभी, इसको है ना शेप और कुछ तो फिगर में देखेंगे तो आपको और अच्छा आइडिया आ जाएगा, जो हमने उसको दिखाया था। तो उसमें से और कुछ कंसेप्ट अगर है तो क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं इसको पाई प्लॉट का प्लॉट एक्सटेंशन हमने लिया था गाइस। ठीक है, डॉट फिगर, फिगर्स। ठीक है, जो डॉट फिगर जो भी साइज है डिफॉल्ट लेगा इसका। नहीं लिया तो फिर थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे उस पे। उसके बाद एस एन एस डॉट या हिस्ट, कुछ भी नहीं आता। हाँ चलो, हिस्ट प्लॉट आ गई। यस, टैब से देखो, टैब से कुछ तो हिंट मिल रही है एक्चुअली, बिकॉज ये ना अपने VS कोड में इसमें इतना जरूरत, मतलब इतना ये नहीं होता डिफिकल्ट। वहां पे अपने को सजेशन आ जाता है कोड का, सीरीज पैरामीटर देंगे क्योंकि बिकॉज वी हैव द सीरीज ना। उसके बाद टैब में कुछ आ रही है। अच्छा, के डी, हाँ ठीक है, के डी, हाँ यस। ये के डी इज नथिंग बट कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन रहता है गाइस। और हमको कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन चाहिए होता है, बिकॉज एज आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड ना कि एक डेंसिटी होती है, फिर वो डेंसिटी पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है। उसके बाद क्या क्या है यहाँ पे? बीन्स है क्या? बीन्स, हाँ बीन्स है। बीन्स इज फॉर के आपका जो ग्राफ जो प्लॉट होगा उसमें आपको दिखेगा ये आ, आपका डेटा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। आई हैव टेकन इट टू लेट्स से 20 लेते हैं, और उसके बाद उसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, प्लॉट करते हैं डेटा पर, देखते हैं दिखता है क्या। हाँ ठीक है, डेटा दिख गया। एक सेकेंड ना, इसको मैं लेबल लेके लेबल आता है क्या देखते हैं, इससे टाइटल। और डोंट वरी गाइस, ये देखो ये जो सिंटैक्स है याद रखने की जरूरत नहीं है, और कोई पूछेगा भी नहीं आपको ये सिंटैक्स। बट कैसा है ना, जनरली वो करते 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 प्रैक्टिस करते 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 वो सब मतलब थोड़ा पर अपने को समझ में आ जाता है। बट द थिंग इज डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स एंड ऑल, ये तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। नहीं, ये रहेगा अपने केडी, केडी रहेगा, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन का मैंने टाइटल दे दिया सिर्फ। तो देखो, दिस इज अवर डेंसिटी एस्टिमेशन। तो डेंसिटी एस्टिमेशन में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? जस्ट लेट मी एक्सप्लेन कि दिस दिस इज शोइंग यू द डेंसिटी। तो गाइस डेंसिटी में देखो यहाँ पे कुछ नंबर ही नहीं थे अपने पास अपने डेटा में। बराबर, अपने डेटा में नंबर क्या थे? 1 से लेके कुछ 7 तक था, और उसके बाद डायरेक्ट हमने आउटलायर ले लिया था। तो ये आपको दिख रहा है, ये शेप ऐसे स्क्यूनेस दिख रहा है यहाँ पे। डायरेक्ट ये आउटलायर यहाँ पे टेल दिख रही है, बट आवर डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन
हियर यहाँ पे ज्यादा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इन रियलिटी यस दैट इज द करेक्ट। कि आप अगर देखोगे तो देखो हमारा डेटा क्या है, 1 से लेके 7 के रेंज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बराबर ना। हाँ, लेकिन आप बोलोगे फिर ये डेंसिटी, डेंसिटी गाइस डोंट वरी मोर ऑन दिस बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेंसिटी इज हियर। इट इज डायरेक्ट ऐसे जाके ऐसे कॉर्नर पे तो आके और ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, तो ये डेंसिटी धीरे धीरे कंसिडर करते जाती है। और देन यहाँ पे आप ये डेंसिटी यहाँ पे थोड़ी बड़ी है। देखो नंबर यहाँ पे ये जो एक दिखा रहा है ना, ये काउंट है, काउंट ऑफ द डेटा पॉइंट, वो एक है, ठीक है। और यहाँ पे कंपेयर टू एंटायर पॉपुलेशन ये छोटा सा यहाँ पे आपको, एक सेकेंड ना, ये वो छोटा सा एक यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ तो डेंसिटी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कंसिडर करो ये डेंसिटी को, बट डोंट वरी, उस पे ज्यादा चिंता मत करो हाँ, कि क्या है कैसे, इतना उसमें नहीं, सिर्फ डेंसिटी का एक इतना ही आप आइडिया रखो कि डेंसिटी मतलब यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है डेटा का, ये आपको बताता है, ठीक है। और यहाँ पे छोटा डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए छोटा दिख रहा है। और देख एक क्या बता रहा है आपको, एक डेटा पॉइंट है, और ये बाकी के ये भी डेटा पॉइंट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है काउंट में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो प्लॉट हो गया एक, और आप बहुत सारा इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो, आई विल शेयर दिस थिंग्स विद यू, बट द आइडिया कि भाई कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब चीजें होती है। आई होप कि इसमें आप नंबर ऑफ फिर ये बढ़ा सकते हो उसको, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, और जब भी हम आगे बढ़ेंगे डेटा को देखेंगे तो आपको इस टाइप में डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। जस्ट एक बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होने के लिए गाइज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बट जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर होने वाली है। जस्ट एक बेसिक लेवल पे आपको मैं डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्यूनेस का आइडिया दे रहा था, एंड आगे भी जाके रिपीट होने वाली चीजें। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। और डोंट वरी, जैसे मैंने बोला ये सब आगे भी बहुत बार डिस्कस होने वाला है, या आज जितना समझा ये जितने बीन्स 20 क्यों लिया? हेलो। हाँ, क्या हुआ? ये बीन्स है ना, बीन्स थर्ड हाँ हाँ, पैरामीटर है, ऐसे नहीं जो रजिस्टर बीन्स 20 ही मतलब। ठीक है ना, एक काम करते हैं, ये इस पे आप चेंज भी करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 10 लेता हूँ, ठीक है, 10 लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे 10 में यहाँ पे शॉर्टेज आ गया, देखो अगर मैं और कम करूंगा वो, अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हो? हाँ करेक्ट करेक्ट, ये काउंट पे दिखा रहा है वो 20। आप इसको चेक करो ना, आप 5 लो फिर क्या फर्क पड़ता है, जस्ट इसके साथ खेलो। फिर उसके बाद बहुत से देखो अभी भी 10 ही यहाँ, तो 20 में आपको क्या यहाँ पे ये थोड़ा चेंजेस दिख रहे, ये वाले इसमें चेंजेस आ रहे हैं, देखो ये वाले नीचे वाले, हाँ नीचे वाले इसमें चेंजेस आ रहे हैं बीन्स के बारे में। तो बीन्स इज नथिंग बट ये वाला आपको कवर कर रहा है कितने यहाँ पे, लेकिन ये बीन्स जो मैंने अभी यहाँ पे लिए बहुत कम कम ले लिए मैंने एक्चुअली। जनरल स्टैंडर्ड वे से यू कैन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से आप ऐसे 15-20, बिकॉज ऑफ द डेटा। देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो चेंज कहाँ पे दिख रहा है आपको, इस वाले सेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड इस पे ओके। आप थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करो, ये बीन्स आर नथिंग बट द प्लॉटिंग ऑन वाई एक्सिस। एंड ये जो बीन्स यहाँ पे शेप का ये जो चेंज हो रहा है ना, जैसे मैं बीन्स कम कर रहा हूँ तो इसका विड्थ बढ़ रहा है, विड्थ कम हो रहा है। तो दैट इज द लाइक पैरामीटर ऑफ हिज प्लॉट में डेटा आप दीजिए केडी, अगर मैं फॉल्स करता हूँ तो आपका ये जो डेंसिटी वाला है ना वो चला जाएगा, वो नहीं दिखेगा। आप देखो डेंसिटी वाला, तो दिस इज जस्ट एक्सप्लोरेशन पार्ट, आप इसको हो सके तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए। बट एनीवे जैसे आगे बढ़ेंगे हैंड्स ऑन होगा, बहुत सारी चीजें आपको ईडीए में भी बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं हम, उस टाइम पे भी आपको ये सामने आएगा। बिकॉज द आइडिया मैं जस्ट आपको जो यहाँ पे स्केच करके जो दिखा रहा था उसमें मैं थोड़ा सा डीप में जाके आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, बिकॉज वी हैव टू कवर लॉट ऑफ ना, तो पॉपुलेशन में मैंने आपको पॉपुलेशन वाला एक आइडिया दे दिया। पॉपुलेशन क्या होता है, एंटायर आवर डेटा जो होता है उसका पैरामीटर जो है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन, लाइक जैसे कि हाँ सैंपल। तो चलो पैरामीटर मतलब मैंने पैरामीटर में दे दिया कि भाई 3, उसमें ये चाहिए अपने को 3 नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। तो एक सैंपल, सैंपल मतलब क्या, जैसे यहाँ पे बताया था ना, स्केच करके मैंने बताया था, उसमें से छोटा एक सेक्शन अगर आप उठाते हो तो दैट विल बी योर सैंपल। और पैरामीटर्स आर न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी एसोसिएटेड विथ पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने अगर 2-3 जो भी नंबर दिया, तो मे बी जो भी बीन्स हम उठा रहे और जो भी नंबर ऑफ सैंपल्स हम उठा रहे, दैट काइंड ऑफ पैरामीटर्स यू कैन पास। ये पैरामीटर पे हाइपर पैरामीटर की एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है। एंड डेफिनेटली व्हेन हम फाइन ट्यूनिंग ऑफ मॉडल वगैरह ये सब चीजें देखेंगे, मतलब अभी अगर मैं उसका बताने जाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि क्लस्टरिंग हम डिफाइन करते हैं, फिर नियरेस्ट नेबर्स वगैरह, ये सब टर्मिनोलॉजी गाइस, और ये सब आपको हम आगे जैसे बढ़ेंगे बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी।
ठीक है। तो अभी तो एक पैरामीटर मतलब एक ऐसे समझो एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो पास करते हैं हम फंक्शन को, ठीक है, जैसे रेगुलर बेसिस। यहाँ पे कुछ छूटा क्या, चलो ये न्यूमेरिकल में कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, और मैं आपको मेक श्योर करूंगा जहां पे ज्यादा जोर देना है, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा मैं उसमें टाइम स्पेंड करूंगा आपको बताने के लिए, ठीक है। बाकी जो आगे बढ़ने वाले और हम बाय हैंड अपना उसमें प्रैक्टिस होने वाली है हैंड्स ऑन, उसके लिए तो वो चलते ही रहेगा। अभी लेट मी एक्सप्लेन कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रिप्ट वाला पार्ट, ठीक है गाइस। एंड तो आपको, चलो किसी को आइडिया है कंटिन्यूअस और डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? किसी को है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, नहीं है तो हम आई विल एक्सप्लेन क्या होता है। बट गाइस इफ यू नो व्हाट इज कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू एंड व्हाट इज, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा कॉलेज में या फिर स्कूल में, अगर आपको पता होगा कंटिन्यूअस क्या होता है, ये कंटिन्यूअस तो हमारे फंक्शन के लूप में भी एक वर्ड है कंटिन्यूअस, कंटिन्यू करके। हाँ, बट दिस इज डिफरेंट एंड दैट इज डिफरेंट, बट आप एक मीनिंगफुली उसको भी आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। क्या देखा था, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट ना? यस गाइस, इफ एनीवन हैज आइडिया अबाउट कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन डिस्क्रीट। यस, नो, ओके, वेटिंग टाइम इज एंडेड बिकॉज या अपने पास टाइम भी थोड़ा लिमिटेड है ना। चलो कंटिन्यूअस आई विल एक्सप्लेन। हाँ, तो कंटिन्यूअस क्या होता है, मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अगर किसी क्लास में आई एम कैलकुलेटिंग हाइट ऑफ लेट से 10 बच्चे हैं, मैं उनकी हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल इजी वाला है, जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएगा इसलिए मैंने ले लिया। हाँ, तो गाइस अगर मैं ऐसे फ्रैक्शन में अगर हाइट करने कैलकुलेट करने जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा बोलूंगा कि एक पहले बंदे की हाइट है इंच में, लेट से ये इंच के बारे में 30, ओके, 30 इंच, 12 इंच का एक फीट होता है ना, तो 12×3 = 36, 3 फीट, 4 फीट, 5×4 = 48, चलो एक रेंज लेते हैं, 48 इंच, 48.5 इंच, ठीक है, एक बंदे की हाइट है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई दूसरे बंदे की हाइट क्या है, 48.632 इंच। तो आई कैन गो नंबर ऑफ लाइक, मैं यहाँ इसको बहुत बियॉन्ड लेके जा सकता हूँ आफ्टर ये पॉइंट के बाद। तो कंटिन्यूटी यहाँ पे हम रख सकते हैं अपने डेटा में, ठीक है, मतलब बहुत लंबे तक मैं इसको खींच सकता हूँ, फ्रैक्शन में लेके जाऊंगा, उसको डिवाइड करूंगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मैं ये फ्रैक्शन में लेके जा सकता हूँ। बाद में आप इसको राउंड फिगर भी कर सकते हो, भाई इतना क्यों करना है, 6 9 बोल दे या जो भी है। बट गाइज ये ऐसे अगर कंटिन्यूटी आती है ना डेटा में, जैसे हम फ्रैक्शंस को बियॉन्ड द लिमिट या लिमिट तक जाते हैं, तो दैट इज आवर कंटिन्यूअस डेटा, दैट इज आवर कंटिन्यूअस डेटा, हम चाहे उसको एक्सपांड ही करते जा रहे हैं। बट डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट ऐसे होता है जैसे मैंने बोला कि उस क्लास में 10 बच्चे हैं, कितने, 10 बच्चे या 20 बच्चे या 50 बच्चे। मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि किसी क्लास में 23.53 बच्चे हैं, ऐसे नहीं बोल सकता ना मैं, आई कैन नॉट से लाइक दिस। सो दिस काइंड ऑफ डेटा लाइक 10 50 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 120 बच्चे, दैट इज अ डिस्क्रीट डेटा, उसको हम ऐसे फ्रैक्शंस में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा आगे जाके आपको पता चलेगा कैसे, मतलब यहाँ पे एक नॉर्मली आप फ्लोट और इंटीजर ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, डिस्क्रीट में देर ये एक नॉर्मल एग्जांपल मैंने दे दिया कि जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर पाते बहुत एक ऐसे लिमिट तक, ये जो कंटिन्यूअस होता है उसको कर पाते हैं, बट डिस्क्रीट को एक सर्टेन बाउंड्री रहती है, वहां तक हम बोल सकते हैं। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डेटा, और इसको हम अब आगे जाके बहुत एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में ये तो हमने देख लिया, मैन्युअली कैलकुलेट कर लिया। कैटेगरिकल और ऑर्डिनल पे मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। किसी को पता है कैटेगरिकल और ऑर्डिनल पे क्या हो सकता है, ऑर्डिनल एंड कैटेगरिकल? यस गाइस, बहुत इजी है, प्लीज फील फ्री टू ओपन अप। आप डिस्कस करोगे थोड़ा सा, आपका भी माइंड ओपन अप होगा, मेरे साथ डिस्कस करोगे, एक्टिव लर्निंग होगी, थोड़ा डिस्कशन बेसिस पे आएंगे। तो ऑर्डिनल और कैटेगरिकल तो इजी वाला पार्ट है ना, नॉमिनल, सॉरी, ऑर्डिनल और नॉमिनल क्या हो सकता है, आप एक आइडिया दीजिए कि ऑर्डिनल में क्या हो सकता है और नॉमिनल में क्या हो सकता है। यस गाइस, जो कुछ बंदे यहाँ पे जिन्होंने पहले कुछ मतलब अटेंड किए अपने नॉमिनल, आई एम कंफर्मिंग कि भाई आई एम ऑडिबल ना और जैसे मैं मतलब बात कर रहा हूँ और सेशन चल रहा है, यस बट यस या ऑडिबल। ठीक है, आपका चैट में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, चलो लेट मी टेल। ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल में आपको हमेशा ऐसा डेटा मिलेगा कैसा, फर्स्ट सेकंड, ये मतलब रैंक, हाँ रैंक, फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड रैंक, हाँ, तो ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर ऑर्डर जैसा डेटा मिलेगा।
ये आप अभी क्या है, अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करो, जैसे हम आगे बढ़ेंगे टारगेट क्या होता है, टारगेट को फिर मशीन कैसे अंडरस्टैंड करता है, ये सब उसके लिए लगने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक फाउंडेशन जो कंसेप्ट है ना, की कंसेप्ट, उसको स्ट्रांग बनाने की हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनल डेटा में क्या आएगा गाइस, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद थर्ड, तो ये बढ़ते जाएगा रैंकिंग। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डेटा। ऐसे ऑर्डिनल डेटा किस फॉर्मेट में रहेगा, ऐसे रैंकिंग वाले फॉर्मेट में रहेगा। देखो देखो डेफिनेशन वाइज मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूंगा, लेकिन वो उसको हमको रटना नहीं है या याद नहीं करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि भाई क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज योर ऑर्डिनल डेटा, ORD, हाँ, ठीक है, इसको ऑर्डिनल। नॉमिनल क्या हो सकता है, अभी कोई भी बता देगा, चलो नॉमिनल क्या हो सकता है। नॉमिनल इज व्हाट विच इज नॉट ऑर्डिनल, बट इट इज अ कैटेगरिकल डेटा, ठीक है। अभी कैटेगरिकल पे भी आ जाऊंगा, बट नॉमिनल में क्या हो सकता है गाइस जनरली, नॉट इन सीक्वेंस। इट इज नॉट इन सीक्वेंस, ओके करेक्ट। बट उसकी वैल्यूज क्या रहेगी फिर, वैल्यूज क्या रहेगी, कैटेगरिकल, हाँ, वैल्यू क्या रह सकती है, जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू बताई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर यहाँ पे वैल्यू क्या मिल सकती है अपने को जनरली, नॉमिनल डेटा। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि रैंडम एक वेरिएबल्स 4 3 2। मेल मेल बता सकता हूँ, मेल, मेल या फिर फीमेल, ठीक है। तो नाम एक नॉमिनल डेटा है, फीमेल, इसमें रैंकिंग वगैरह कुछ नहीं, मेल फीमेल। उसके बाद आप जो समझो, यस नो काइंड ऑफ थिंग, यस नो, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल कैटेगरी, तो मल्टीपल कैटेगरी पे आप उसको क्या बोल सकते हो, मल्टीपल कैटेगरी में क्या आ सकता है, यस गाइस, जनरली मतलब ऐसा है, जैसे ठीक है आपका वर्किंग, आप यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो मैं किसी ऐसे समझो कि एक ऑर्डर ऑर्डर सिस्टम में एंट्री हुई ऑर्डर की, तो फिर उसके लिए क्या होता है, अपना पेंडिंग स्टेटस होता है, ऑर्डर इज पेंडिंग, उसके बाद ऑर्डर इज कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड होता है, उसके बाद ऑर्डर कंप्लीटेड, पेंडिंग, फेल्यूर आता है, सक्सेस स्टेटस का फेल्यूर, फेल्ड। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब हो जाएगा आपका नॉमिनल डेटा, ठीक है। सो नॉमिनल डेटा हमने देख लिया, ऑर्डिनल डेटा हमने देख लिया, कैटेगरिकल, तो कैटेगरिकल मतलब क्या, जो भी डेटा नॉट इन दिस फॉर्मेट, ये ऐसे नंबर फॉर्मेट में नहीं रहेगा, ऐसे नेमिंग फॉर्मेट में रहेगा, उसको हम बोलेंगे कैटेगरिकल डेटा। तो ये तो अभी की कंसेप्ट हम ये उस पर थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, जब मशीन लर्निंग और ये सब चीजें आगे बढ़ेंगे ना, तो ये दीज एज अ टारगेट वेरिएबल हम कंसिडर करेंगे मशीन को लर्निंग के लिए, तो दोज थिंग्स विल कम इनटू पिक्चर। इसके लिए फिर कैसे हम लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं, ऐसे ऐसे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा के लिए, ये सब हम उस टाइम पे ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करेंगे। बट बिफोर मूविंग देयर ना, दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट अभी आपको मैं कभी भी पूछूंगा नेक्स्ट सेशन में, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई नॉमिनल क्या होता है, जब भी हम ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, तो यू गाइस शुड नो दिस थिंग्स, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स गाइस। तो स्टैटिस्टिक्स में ये बेसिक थिंग्स है जो लगती है अपने को। और मैंने कल के सेशन, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि व्हाई वी नीड ऑल दिस थिंग्स एंड व्हाई वी नीड स्टैटिस्टिक्स टू टू मूव विथ मशीन लर्निंग एंड ऑल। तो ये तो हमने जो जिसने जिन्होंने भी मिस किया है, तो आप अर्लियर सेशंस आप यू कैन गो विद देयर, एंड जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे तो मेरा स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, बिकॉज मैंने जैसे बोला था कि बेसिक कंसेप्ट और वो जो कंसेप्चुअल थिंग्स है उसके ऊपर थोड़ा सा अपन डीप में डिस्कस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे, ओके, यस, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वी विल लर्न दिस थिंग्स। तो होपफुली आप जब भी नेक्स्ट सेशन में आओगे, तो अगर टाइम मिलता है आपको, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज क्या होती है। आए तो अच्छा ही है, नहीं आए तो डोंट वरी, आई विल, मैं एकदम बेसिक लेवल पे इसके इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी थेरीज सीखेंगे हम, उसमें बेयस थ्योरम क्या होता है। तो धीरे धीरे आपको कोई अंदाजा आ रहा है, हम प्रोबेबिलिटी के और बढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी में एक थोड़े शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, कि भाई हम जनरली इसको आउटकम्स के चांसेस हम बोलते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस थिंग्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग दिस थिंग्स, और ये आएगा वो आएगा ऐसे आएगा। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने ओरिएंटेशन सेशन में एक चीज क्लियर की थी कि अल्टीमेटली मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, इन्फरेंस, थोड़ा सा प्रिडिक्शन करने का, एक्यूरेसी की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम वो तो ब्रेन में अपन कर देते हैं मैनुअल चीज, हम ह्यूमन वो चीज करता है, बट मशीन को ये सब करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर अप्रोच चाहिए। तो उसके लिए हमको ये प्रोबेबिलिटी भी अंडरस्टैंड करना, लर्न करना ये जरूरी है। बिकॉज ये जो दो चीजें है ना गाइस, जो पहला मॉड्यूल जो पाइथन फॉर मशीन लर्निंग, और ये दूसरा मॉड्यूल स्टैटिस्टिक्स के जो कंसेप्ट है, ये कैसा है ना, ये कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड होनी जरूरी है। बट अपना जो वर्किंग वाला चीज है, जिससे हमको आउटकम दिखना शुरू हो जाएगा, जिससे हमको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, वो होगा अपना ईडीए एंड मशीन लर्निंग वाले मॉड्यूल्स। वहां पे हम डायरेक्ट उसके जो भी हम सीख रहे हैं ना अभी, उसका इंप्लीमेंटेशन वहां पे देखेंगे।
बट एक्चुअली दिस 2 modules आर जस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट, बेसिक थिंग्स. अगर इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो नेक्स्ट सेशन में. जो भी यहाँ पे हमने जो चीज कवर की उसमें अगर आपको कुछ लगा तो नेक्स्ट सेशन में शुरू में आप या एंड में आप पूछ लेना. तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में आई विल गिव एग्जांपल टू यू, बट अगर मैं यहाँ से अभी और एक्सटेंड करूंगा तो अपना जो टाइम लिमिट है सेशन का वो एक्सटेंड हो जाएगा. एंड दैट्स द रीजन कि आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर. और किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ भी पूछना है आगे कैसे होगा, वॉट एवर वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग, इसमें क्या फिर आउटकम मिलेगा, फिर कैसे, किसी को डिफिकल्टीज है, कुछ भी है, तो गाइज यू कैन आस्क मी एंड द नेक्स्ट 5 to 10 minutes आर रिजर्व फॉर दैट. ओके गाइज, या. गौरव, ये जो पीडीएफ जो अमूल, एक्सेल है वो योर हमारे वॉइस साथ। इज वॉइस इज हेलो, वेरी लो यार. लाइक आई डोंट नो इट इज फ्रॉम माई साइड और बट अभी आ या. रहा है ठीक से? ठीक है, बोले आप, मैं थोड़ा ये नजदीक डॉक्यूमेंट आके. हमारे साथ शेयर है। डॉक्यूमेंट, अच्छा ये हाँ। पीपीटी क्या? हाँ, पीपीटी। पीपीटी, ओके. तो पीपीटी आई विल शेयर इट विथ यू, डोंट वरी. ओके, विल डू इट, बट देर आर सम अपडेशंस ना, मतलब थोड़ा थोड़ा अपग्रेड सबको मेरे को भी होना चाहिए. कैसे भी हो, जस्ट व्यू ओनली ठीक है कर ठीक देना। है, एनीवे आई विल शेयर दिस एंटायर पीपीटी विथ यू. ऑल राइट, या. नहीं, बस ड्राइव पे रख देना, खाली व्यू ओनली कर देना। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली. यस गाइस, ठीक है. और कुछ सी, लाइक इन द ओरिएंटेशन सेशन हमने ओरिएंटेशन किया था, इंट्रोडक्शन किया था. तो गाइज एज वी आर गोइंग विद लाइक एज अ टीम ना, और बाद में जब हम चैलेंजिंग टास्क वगैरह प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो अपना जो डिस्कशन है वो कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वी हैव सम न्यू लर्नर्स ज्वाइंट आई गेस टुडे. सो हमारे पास और एक 2-4 मिनट 5 मिनट बचे हैं. तो वी हैव पंजाब, वी हैव ऋषिकेश. तो Mahesh, yes, Mahesh is there. He's joining from first session. But Rishikesh and Punjab. So guys, if please feel free to open if you have like if the environment is okay and allowing you to be unmute. So yes, Punjab, can you please introduce yourself, or Rishi, can you please introduce yourself to the Oh, team, to our am I learners? audible? यस यस, और Yes, Rishi, you are audible. Yeah. Hello. Hi, Rishi. Hi. Hi, Rishi. So in the introduction, you can Most just mention what is your like where you are working, your experience, and yeah, just anything. Yeah. Okay. Yes, Rishi. so introducing myself, I'm Rishikesh Jadhav, basically from Pune, working in Cisco as a software architect and currently handling the platform and DevOps section and the security lifecycle of multiple applications. Most of this listed people who has joined, they already knows me. They are my colleagues, Great. like Okay. Amol, Punjab, Okay. Vishal, Gaurav, Moin. Sorry if I missed anyone, Vishal. So, yeah, I mean, I joined 10 minutes late today because I stuck in another call. Okay. But when I joined, from that moment only, सुन रहा था सब अच्छे से, and I like the way you are just explaining the concepts at the very basic level. Instead of focusing on the definitions, the theoretical definitions, you are giving the real-time examples, which is very good. Uh, the reason behind I joined this uh, particular course. So as we all know, right, Amol, Vishal, and Punjab, industry is changing very fast, you know, and we need to upgrade ourselves uh, to to be in the race and to be in the industry. And this is, I mean, ये जो इवोल्यूशन आता है ना, दिस इज वेरी वंस इन अ कितने सालों में ऐसा इवोल्यूशन आता है, राइट? एक मेजर चेंज जो हम देखते हैं, ड्रास्टिक चेंज. Yes. सो एआई इज वन ऑफ दैट ट्रेंड, है ना. सो पूरे इंडस्ट्री को चेंज कर देगा. Yes. एंड द वे आज तक हम लोग जो जिस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे थे, कोड कर रहे थे, आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे थे, या जो वेब प्लेटफॉर्म बना रहे थे, है ना. सो दोज ऑल आर somehow those all will be going to change, and it's already started. And
we are a bit interested to learn this new kind of technology, though it is not new. हमें पता है कि मतलब ये बहुत आई गेस 1 1.5 2 सालों से ये सब कुछ चल रहा है, बट वी कैन से दैट वी हैव जॉइंड इट लेट, बट ठीक है, आई मीन देयर इज still way to go ahead. So I liked the session, Gorak. This is my first session. I know Gorak very much. Yeah, we were colleague and we are We were friends colleague from, in we started our career together. together, yeah, first company. So I like the way, and Gorak has seen many hiccups in his career journey, and I am happy to see. I mean, now he is at that level where he conducts. He acquired this kind of skill sets which are very much needed currently in the industry, and he is helping to all his colleagues or the friend circle to align this new trend, to get aligned to this new trend. And I mean, thank you so much, Gorak, for extending this opportunity for all of us, Thank and you. extending Thank you. your hand and support. And I'll be looking forward to continue this course, class, or maybe, I mean, whatever we will, training sessions, Thank you. Yeah, thank you, Rishi, for these kind words and motivating me as well to conduct this. Thank you, guys. So I think Punjab, maybe he's busy with his regular work and he left. But yeah, so maybe we will catch up, Punjab. We will catch in the next meeting. And thank you, guys. Thanks for being here. And as I said, ki one-to-one, you can even connect with me if you have some, like, let's say, additional doubts or any other kind of discussion. Please feel free to connect with me. Thank you, guys. So our next session will be on Monday. We will discuss the next things there. We will learn a lot, and I will share this PPT with you on the drive. And okay, guys, thank you. Enjoy the rest of the day. We will meet on Monday. Thank you, guys. Thank you. So, Gorak, I just wanted to understand that what will be the regular timing for this Regular, okay. sessions? Yeah, so actually we have this schedule, okay, Monday 8 to 9 p.m., then Tuesday 8 to 9 p.m., and Thursday 8 to 9 p.m. So these 3 days we conduct the meetings, and I'm making sure that whatever the earlier, like the sessions I have conducted in earlier classes now, the first batch. So I'm just putting those recordings as well here, so that you guys will have some additional like knowledge, or let's say additional go through the things which we are going and which we are learning in the next session. So एक चीज वो रहेगा, and that's the reason कि हमने ये 3 days लिए हैं, और उसके साथ एडिशनल जो रहेगा अपना मटेरियल जो पहले बैच में हुआ है ऑलरेडी, जो चीजें, तो ये एक एडिशनल चीज। एंड रेस्ट ऑफ द वॉट एवर द अपडेट्स ना, तो वो अपडेट्स मैं अपने ग्रुप पे मैं देते रहता हूँ कि जो भी असाइनमेंट्स वगैरह वो सब चीजें ना, तो बिकॉज एज आई सेड कि प्रैक्टिस दिस एक्टिव लर्निंग will happen only when you guys are also having some hands on these things, whatever we are taking care, whatever we are covering. And ये जो पहले सेशन है दो, मतलब मोस्ट ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला सेशन है, तो यही अपना अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल बेसिस पे है। तो टाइमिंग तो अपना ऐसा अभी फिक्स हो गया है, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। बट एनीवे अगर कुछ भी रहेगा तो हम ग्रुप में वो डिस्कस करके एक पोल लेके, और कुछ टाइमिंग में अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो वी हैव दैट स्कोप एज वेल, हम वो भी कर सकते हैं डिस्कशन करके। Yes, guys. Okay, so Gorak, by any chance, if someone or missed any lecture due to some other office stuff or any of other Recordings, classes, yeah. then we have to follow the recordings. Okay? Yes, recordings will always be there. अच्छा Punjab audio issue. He is saying audio issue, and I think he has left or he's there. ठीक है, I can't Punjab say is in not the here. list. ठीक है, बट या रिकॉर्डिंग तो एक चीज हमेशा रहेगा, अपने सेशंस की हमेशा रिकॉर्डिंग्स रहेगी।